ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕਰਨ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਏ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਲੰਗੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲ ਲਈਏ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੇਮ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਚੌਧਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਹੁੱਡਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ, ਜੋ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਪੈ ਜੇ। SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿੰਘੋ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਕੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ शुरू करांगे। दीपक जी, आम आदमी पार्टी हुण किवें तुर रही है हरियाणा दे विच अगे? देखिए वीर जी, एक चीज हमने पहले बोली थी, हरियाणा की राजनीति में पंजाब की राजनीति का बहुत गहरा असर होता है। और जैसे ही पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार बनी थी तो आम आदमी पार्टी ने भी सोचा था हरियाणा में भी हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन साथ के साथ हरियाणा के लोगों ने एक बात, हमने भी एक बात बोली थी कि 6 महीने पहले देखो सरकार कैसे काम करती है, जो पंजाब के हक है वो उसको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। उसी बीच में 2-3 बातें ऐसी होगी जो कि शक की नजर से देखने लगे। आम आदमी पार्टी का जो किया, चाहे वो 2000 किसानों की गिरफ्तारी के वारंट निकालना हो, अब आम आदमी पार्टी बोलती है ये वारंट कांग्रेस निकाल के गई थी, कांग्रेस निकाल के, लेकिन वारंट तो अभी आम आदमी पार्टी के राज में निकले हैं आके। वो सबसे बड़ी बात आपने देखी हो सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे ही 2000 किसानों की गिरफ्तारी के वारंट निकले थे, सबसे पहले और सबसे ज्यादा आवाज हरियाणा की तरफ से उठी थी कि पंजाब के किसी भी किसान को गिरफ्तार किया तो अच्छा नहीं होगा, हम हरियाणा पंजाब के साथ खड़े हैं। ये जो एक भाईचारा जुड़ा, जो एक हमने मुहिम चलाई थी, कोशिश की थी, वो हमारी कामयाब होती जा रही है कि भाई हरियाणा पंजाब ये एक हैं और एक ही रहेंगे। सियासत करने वाले हमारे को बांटते रहेंगे, कभी SYL के नाम पे, कभी चंडीगढ़ के नाम पे। आम लोगों को ना SYL से मतलब है ना ही चंडीगढ़ से मतलब है। तो उसके बाद जैसे ही आम आदमी पार्टी भी पैर फैला रही थी तो कांग्रेस ने भी अपनी मजबूती प्रदान करने के लिए, कांग्रेस को भी एक अध्यक्ष चाहिए था हरियाणा में जो उनकी बात को रख सके। जबकि हरियाणा में ये बात जग जाहिर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिना हरियाणा में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात कांग्रेस आला अधिकारियों को पता थी, लेकिन उन्होंने फिर भी किनारे लगा के, कभी बोल रहे रणदीप सुरजेवाला प्रधान बनेगा, कभी बोल रहे हैं कुलदीप बिश्नोई बनेगा, अध्यक्ष बनेगा हरियाणा का। ये खुद कांग्रेस डामाडोल हो चुकी है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। कांग्रेस की स्थिति जो पंजाब में थी वही हरियाणा में है, सेम स्थिति। उसके बाद बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी ऐसे ही घबराई हुई क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार बढ़ती जा रही थी। बीजेपी बोल रही हमारे को एक मौका और दो। ये तो गलती 2019 में होगी हरियाणा से, और गलती भी सिर्फ एक छोटी सी गद्दारी के कारण हुई। जो दुष्यंत चौटाला गद्दारी करके गया, अगर वो गद्दारी नहीं करता तो बीजेपी अब की बार आनी ही नहीं थी हरियाणा में। लेकिन 5 साल फिर हम उस एक गद्दार के कारण तंग हुए हैं। अब की बार हरियाणा के लोगों ने सोच रखा है, चाहे कोई छोटा दल हो या बड़ा दल हो, अगर उसके कहीं भी थोड़े बहुत भी लिंक होंगे ना बीजेपी के साथ, उसको वोट नहीं मिलेंगी। बीजेपी को साफ करना मेन उद्देश्य है अभी हरियाणा में। जैसे पंजाब में साफ किया था ऐसे ही हरियाणा में साफ होगा। हाँ, बची बात आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी का वर्चस्व जब बढ़ सकता है तो अगर वो पंजाब के हक उसको दिला सकती है तो, क्योंकि SYL का मुद्दा खुद आम आदमी पार्टी छेड़ रही है, जबकि हरियाणा के लोग बोलते हैं SYL का कोई मुद्दा ही नहीं हमारा। ये जानबूझ कर जो छेड़ रहे हैं, मुद्दा छेड़ रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी इतना ही भला चाहते हैं
यही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो किसानों के ऊपर 1 करोड़ का जो जुर्माना लग रहा था पराली जलाने पर, सबसे पहले इन्होंने साइन किए थे। यही अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर शांति यात्रा निकाल रहे थे। अभी जहांगीरपुरी में क्या हो रहा है, दिल्ली में जगजाहिर है, इतना बड़ा मसला उठा हुआ है और उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला है। तो ये सब देख रही है हरियाणा की जनता, चुपचाप देख रही है। अभी समझ भी रही है कि हमारे को करना क्या है, वो समय आने पर दिखाएं। जैसे पंजाब ने दिखाया था ना, चुपचाप रहते हुए पंजाब की जनता ने जो बदलाव करना था वो बदलाव कर दिया था। ऐसे ही हरियाणा के अंदर होगा, चुपचाप रहते हुए जो बदलाव करना है वो बदलाव होगा। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ। इन्होंने इतना विकास कर दिया कि 13 महीने तो अभी सड़कों के ऊपर बैठ के आए हैं, हरियाणा के किसान भी पंजाब के भी साथ मिलके बैठे थे वो तो। और ये अभी ताजा विकास देख लो आप, जो हरियाणा की तूड़ी है राजस्थान में या दूसरे स्टेट में बेचने के लिए जाते थे, उसके ऊपर बैन लगा दिया इन्होंने। बैन भी लगाया है और जबरदस्ती जो पुलिस के अधिकारी हैं, जबरदस्ती किसानों की तूड़ी के ट्रैक्टर पकड़ पकड़ के और उसमें दे रही है, गौशाला में दे रही है। क्यों? ये कौन सी जबरदस्ती, कौन सी तानाशाही है? क्या एक किसान क्या करता, साल भर में अपनी फसल तैयार होती है, उसके अपनी मर्जी से बेच भी नहीं सकता क्या किसान? कि सिर्फ सरकार की मर्जी चलेगी, वो चाहेगी वहां पे तूड़ी डाली जाएगी, वहीं पर गेहूं डाला जाएगा। ये कौन सी तानाशाही है? ये समझ में नहीं आ रही। और फिर सोचती है बीजेपी की हमारा हम विकास कर रहे हैं। आपका विकास पूरी दुनिया देख रही है, जो सा विकास कर रहे हो। अधिकारियों को आदेश दे रखे हैं पूरे हरियाणा के अंदर, अगर कोई भी किसान अपनी तूड़ी बेचने जाएगा उसको वहीं पर गिरफ्तार किया जाएगा और तूड़ी को गौशाला में डलवाया जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इस चीज का जवाब है मुख्यमंत्री साहब के पास कि ऐसे अधिकारियों को आदेश देने वाला कौन है? ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਲੜਾਈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲੂਗੀ। हरियाणा में कांग्रेस के 5 धड़े हैं वीर जी। जी। हुड्डा धड़ा अलग है, सुरजेवाला धड़ा अलग है, कुलदीप बिश्नोई का धड़ा अलग है, कुमारी शैलजा का धड़ा अलग है, अशोक तंवर का धड़ा अलग था। अशोक तंवर तो चले गए आम आदमी पार्टी में। अभी भी इनके 4 धड़े हैं, ये चारों खुद ही नहीं मिलकर रहना चाहते। तो ये हरियाणा का भला कौन सा करेंगे? इनकी लड़ाई सिर्फ कुर्सी की है। ये आपस में कुर्सी की लड़ाई लड़ेंगे या हरियाणा के भले की सोचेंगे? ये बात कांग्रेस को क्लियर करनी चाहिए। ये सिर्फ कुर्सी, आपस में अपनी प्रधानी की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। हरियाणा के हकों के लिए कब लड़ेंगे ये? अब हरियाणा को जरूरत अब है भाई, कांग्रेस वाले आओ, सहयोग करो। क्यों किसानों के ऊपर इतना अत्याचार किया जा रहा है? लेकिन ये लोग अपनी कुर्सी की लड़ाई में लगे हुए हैं। क्या जनता को ये चीज दिखाई नहीं दे रही? दिखाई दे रही है, और इस चीज का समय आने पर जवाब भी देगी जनता। और ये चीज समझ में आ चुकी, कांग्रेस को भी समझ में आ चुकी है। अगर कांग्रेस में अगर ये बात उठने लगी कि जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो गैर गांधी परिवार का होना चाहिए, तो कांग्रेस अपने हाथों मिटती जा रही है। कोई दूसरा बर्बाद नहीं करेगा। कांग्रेस की चिंता नहीं है बीजेपी को, बीजेपी को चिंता है आम आदमी पार्टी के बढ़ते वर्चस्व से। उनको कैसे रोका जाए? उनको रोकने के लिए अभी बीजेपी बोल रहे हम विकास करेंगे। आपको 10 साल मौका दे दिया, 10 साल में आपने जो विकास किया ना, उसका उससे तो बस भगवान ही बचाए। और ज्यादा विकास कर दिया ना तो हम आदि मानव युग में पहुंच जाएंगे, जहां पर केले के पत्ते लगा के रहना पड़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब कुछ बर्बाद। बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, भ्रष्टाचार में नंबर 1 हरियाणा। और इससे ज्यादा विकास क्या करोगे खट्टर साहब? जो हरियाणा एजुकेशन में नंबर 1 था, वो आज भ्रष्टाचार में नंबर। आप देखो आए दिन बैंक डकैती हो रही है, आए दिन कहीं 1 करोड़ 65 लाख लूट लिए, कहीं 1.5 करोड़ लूट लिया, कहीं 15 लाख लूट लिया। चल क्या रहा हरियाणा में? गुंडागर्दी में नंबर 1 बना दिया हरियाणा को। जहां पर आपसी भाईचारा होता था वहां पर लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ, ਕਾਂਗਰਸ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ के आई है? जी बिल्कुल आई है, अखबार में आ चुकी है ये। हम्म, अखबार में है, हम आपके पास कटिंग भेज देंगे, वो देख लेना आप। उन्होंने बोला कि गैर गांधी परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए कांग्रेस का, तब कांग्रेस का उद्धार हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ये गल आज नहीं, पहली बार निकल के नहीं, पहले भी नीचे सुर में बोलते थे, लेकिन अभी बिल्कुल खुल के बोलने लगे। अगर ऐसा कुछ बोला गया तो इसका मतलब पूरी ही कांग्रेस में कोई ना कोई गड़बड़ है। सब कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए फिर कब लड़ोगे? जब देश को जरूरत है उस समय पर आप कुर्सी के लिए लड़ रहे हो, तो कब करोगे आप देश का भला? ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਧੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ जी ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ।
जी। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ? अभी तक इनेलो की एक सीट है अभय सिंह चौटाला। इस चीज को कांग्रेस भी मानती है, बीजेपी भी मानती है और आम आदमी पार्टी भी मानती है। सभी मानते हैं उसको कि वो अकेला पूरे हरियाणा की आवाज बना हुआ है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि उस पूरी पार्टी की एक सीट है और वो अकेला हरियाणा के हर मुद्दे को उठाता है और उसको पूरे सही तरीके से प्रेजेंट करता है कि ये देखो हरियाणा में ये समस्या चल रही है, आप इसको दूर क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने तो खुद भूपेंद्र हुड्डा को भी बोला था कि आप सहयोग करोगे तो हम हरियाणा के मुद्दों को आगे रख सकते हैं और अपनी बातें मनवा सकते हैं। तो ये सहयोग करने से भूपेंद्र हुड्डा अपनी कुर्सी को बचाए या उनका सहयोग करेगा। ये जो कुछ चल रहा है, हो सकता है कल को खुद आम आदमी पार्टी भी अभय सिंह चौटाला की तरफ जा सकती है। जिस हिसाब से अभय चौटाला अकेले आवाज बने हुए, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों के लिए सबसे पहले इस्तीफा दिया था। उन्होंने बोला था अगर 26 जनवरी तक किसानों की मांग नहीं मानी गई तो मैं अपने विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा, और उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर दोबारा चुनाव हुए, चुनाव तो वो जीत गए लेकिन इस्तीफा तो दिया। अगर हक की असही आवाज देखी जाए तो अभय सिंह चौटाला उठा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी खुद की एक सीट है, उनके खुद के भतीजे ने धोखा दे दिया था 2019 में। वो चीज भी लोगों की नजरों में है कि यही चौटाला परिवार है जो हरियाणा को धोखा देने वाला था। वो खुद अभय चौटाला कह रहे हैं कि क्या परिवार में एक गंदा होने से सभी थोड़ी गंदे हो जाएंगे। तो ये चीज लोगों को सोचनी है कि वो उनके ऊपर कितना भरोसा करते हैं। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਜੁੜਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ जी। ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਰੂਨੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਰੂਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਹੀ ਲੜਨਗੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ? देखिए वीर जी, जो गुरनाम चढ़ूनी है उसने खुद ने अपनी एक पार्टी बना ली है। वो तो चुनाव अब भी लड़े, हरियाणा में भी लड़ेंगे। उन्होंने तो अपनी पार्टी बना ली है, किसान यूनियन से उनका कोई मतलब नहीं है। और हरियाणा में हर जगह पर उनका इस बात के लिए विरोध हुआ था कि वो पंजाब में जाके चुनाव लड़े। जबकि उनको एक बार बोला था कि आप 2024 में हरियाणा में चुनाव लड़ो अगर आपको चुनाव लड़ना है तो, लेकिन पहले जो किसानों के हक है वो दिलवाओ उनको। लेकिन उन्होंने नहीं माना। ये पंजाब में गए, उसके बाद जैसे ही आए इनका हर जगह पे विरोध हो रहा है, कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, यही राकेश टिकैत जी लखीमपुर खीरी में फैसला करवा के आए थे, लेकिन अब जब लखीमपुर खीरी में जरूरत थी उस समय ये हरियाणा में आ गए। तो ये जो किसान अगू हैं ये अपने उसको प्रभाव को अपने हाथों खत्म कर रहे हैं, अपने हाथों नीचा दिखाते जा रहे हैं कि जहां पे जरूरत होती है वहां पे जाते नहीं। जरूरत यूपी में है, लखीमपुर खीरी में जो गवाह था उसको मारा गया, पीटा गया, धमकी दी गई, वहां पर तो ये किसान आगू गए नहीं। वहां पर कौन गया? राष्ट्रीय लोकदल का जो अध्यक्ष है जयंत चौधरी, वो जाके मिलके आया, उससे आश्वासन दिया उसको कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जहां पर जरूरत अगर ये वहां पर पहुंचेंगे। सबसे पहले तो किसान आगुओं ने, खुद पंजाब के किसान आगुओं ने बोला था गुरनाम चढ़ूनी को, अगर आप हरियाणा में चुनाव लड़ोगे तो हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये भगवान जाने कि गुरनाम चढ़ूनी के दिमाग में क्या चल रहा था, नहीं मैं तो पंजाब में चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने ना पंजाब वाले किसान अगुआ को छोड़ा ना खुद को छोड़ा। दोनों तरफ से जमानत जब्त सभी की हुई, कोई भी नहीं बचा। अगर सिर्फ पंजाब के आगू एकता बना के पंजाब में चुनाव लड़ते तो बहुत गहरा असर होता चुनाव के ऊपर। लेकिन वहां पर एकता किस कारण नहीं बन पाई? क्योंकि हरियाणा से भी जाके गुरनाम चढ़ूनी ने पार्टी की घोषणा कर दी और वही क्या था, लोगों के दो तीन दिमाग हो गए, अब किसके साथ जाएं किसके साथ ना जाएं। या तो ये शुरुआत से एकता करते कि हम एक होकर चुनाव लड़ेंगे, उसका अलग असर होना था। अब कोई चुनाव लड़ रहा है, कोई नहीं लड़ रहा है, कोई विरोध कर रहा है, जनता समझ नहीं पाई कि हमें करना क्या है। अभी भी इनके पास मौका है। हाँ ठीक, हरियाणा में चुनाव लड़ना है तो पहले किसान आगुओं को एक होना पड़ेगा, एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा। जब तक ये एक झंडे के नीचे नहीं आएंगे तब तक जनता की समझ में नहीं आएगा हमें किस झंडे के साथ जाना है। ना ये किसानों के रहे ना ही राजनीति के रहे। ये बात बार बार, एक बार शायद आपको पता हो बब्बू मान ने भी बोली थी कि जितनी किसान जत्थेबंदियां हैं सबको एक झंडे के नीचे आना चाहिए, फिर देखो अलग ही असर होगा इनका। और ये बात हम भी बार बार कहते आए हैं, एक झंडा और एक डंडा होगा ना, जनता को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन अब कंफ्यूजन है, गुरनाम चढ़ूनी कुछ बोलता हम ये करेंगे, किसान आगू और दूसरे जो हरियाणा के हैं वो बोलते नहीं ये राजनीतिक दल है। तो ये सब इनको अपने आप बैठ के आराम से इनको सुलझाना चाहिए, जो कि ये करना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं करना चाह रहे? किसका ईगो आगे आ रहा है?
ये लोग ही दूर करेंगे इस चीज को। आम आदमी तो सिर्फ ये है कि भाई एक हो जाएंगे उतना ही अच्छा है। जैसे हमने एक छोटी सी मुहिम चलाई कि संयुक्त पंजाब एक करो, इसके लिए सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाई है हमने। इतने मैसेज आए हैं हिमाचल से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से कि हाँ हम पहले इसको सोशल मीडिया पे चलाएंगे, फिर इसको ग्राउंड स्तर पे लेके आएंगे। अगर अखंड भारत बन सकता है तो अखंड पंजाब भी बन सकता है। फिर एक झंडा और एक डंडा होगा, ये क्लियर है। समय लगेगा थोड़ा, लेकिन हम इस मुहिम को कामयाब करके दिखाएंगे। ਜੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ SYL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਿ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਜਦੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? अभी ये इस मुद्दे की जिम्मेवारी दी गई है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी का जो अध्यक्ष है सुशील गुप्ता, वो बोल रहा है कि मैं SYL के पानी को हरियाणा के हर एक खेत तक लेके जाऊंगा। वो दूसरी तरफ पंजाब में सरकार किसकी है? आम आदमी की। फिर ये मुद्दा उठाने की जिम्मेवारी इनको क्यों दी गई? इसका मतलब ये एक पॉलिटिक्स मुद्दा है और इससे आगे कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जो पंजाब के किसान आगू हैं वो बोलते हैं SYL पे जितना अधिकार पंजाब का उतना ही हरियाणा का भी है और राजस्थान का भी है। वो पानी के हम उनके लिए अपना खून भी दे देंगे। तो इसका मतलब ये मुद्दा पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स पार्टियां उठाती हैं। आम आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी अगर पानी नहीं आ रहा है तो क्या खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है? जबकि पंजाब की जनता कहती है कि इतना अधिकार हरियाणा का भी है। तो फिर ये मुद्दा कहां से आया? मुद्दा SYL का नहीं है, मुद्दा है इनको हमारी एकता तोड़नी है। जो ये एकता हुई है कितने सालों के बाद, आपने देखा होगा 1966 के बाद पहली बार 2020-21 में आके एक हुआ हरियाणा पंजाब। इस एकता को तोड़ने के लिए कभी SYL, कभी चंडीगढ़, कभी ये कभी वो। अगर सुशील गुप्ता जी आपको अगर नहीं पता हो तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप अपने मुख्यमंत्री से बात कीजिए, मुद्दा क्लियर। आप क्यों बार बार स्टेटमेंट देते हो कि हमें SYL चाहिए, SYL चाहिए? उससे पहले इनेलो की पार्टी होती थी, कभी कांग्रेस वाले, एक बार बीजेपी वाले, जब किसान आंदोलन चला था खुद बीजेपी वाले भूख हड़ताल पर बैठे थे कि हम SYL का पानी लेके आएंगे। इस SYL के पानी को सभी पार्टियां लेके भी आना चाहती हैं और आज तक कोई लेके भी नहीं आया। ये चक्कर क्या है? ये चीज लोगों को समझनी पड़ेगी। चाहती सभी पार्टियां हैं SYL का पानी आ जाए और आ भी नहीं रहा। बीजेपी खुद सत्ता में होते हुए नहीं लेके आई। अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष है जो हरियाणा का, वो बोल रहा है मैं SYL का पानी लेके आऊंगा पंजाब से। कौन से पंजाब से लेके आएंगे? ये पाकिस्तान वाले पंजाब से लेके आएंगे क्या? वहां पे इनकी सरकार नहीं है। ये मुद्दा लोगों का नहीं है, ये मुद्दा एक पॉलिटिक्स मुद्दा है। इससे आम जनता दूर है बिल्कुल। ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। धन्यवाद वीर जी। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ।